Okay, so today's topic is diode. The basic of diodes definition of diode is a diode is a two-terminal electronics component that conduct current primarily in one direction. Actually, the diode have two terminals. One is anode and another one is cathode. So the current flow from one direction, anode to cathode, and it has low resistance in one direction and a high resistance in the other direction. Basically, diodes are made of semiconductor, usually silicon or germanium. Essentially, a stack of a p-doped and n-doped silicon to form a p-n junction diode. Here you can see in the slide a diode showing p-type and n-type, basically formed with p-type and n-type material. A transistor is a three-terminal device which is also a arrangement of PNP type semiconductor, and it's like the Oreo cookies where the chocolates are situated between two cookies layers. So what is PN junction diode's characteristic? Here we can see PN junction diode are showing in these pictures, and the current is traveling from P to N junction, and the voltage source here is V voltage source applying there. So in the forward bias, external battery makes the anode more positive than the cathode. Current flow in the direction of the arrow in the symbol here is showing, and in the reverse bias, external battery makes the cathode more positive than the anode. A tiny current flow opposite to the arrow in the symbol. Ideally, there is no current should be flow in the reverse bias, but practically if we will check it on hardware or in simulation, we can see the current, some tiny currents are flowing in the reverse bias also. So there are the basic type of diode. First is Zener diode, varactor diode, light emitting diode, photodiode, laser diodes, Schottky diode, pin diode, tunnel diode, small signal diode, large signal diode, and Shockley diodes. These are the type of diodes. So first is the light emitting diode, and light emits light when the diode emits light when the forward wise LED are available for either infrared or visible light. The basic examples of the is TV remote, the LED situated there, and high intensity LEDs are used in large screen display. We have seen many advertisement board, so the diodes LEDs are available there, and traffic light signals, automotive lighting, and home lighting etc. So where we can see the LED light emitting diode. When the device is in forward bias, electron cross the PN junction from the N-type material and recombine with the holes in the P-type materials. The difference in energy between the electron and the holes corresponding to the energy of visible lights. When a recombination take place, the recombining electron release energy in the form of photon. So the light output with the intensity and colors is also dependent on temperature. Light intensity goes on with higher temperature. So where we can see it's emitting the lights. These are the basic LEDs here showing in some colors: red, green, blue, white. So another one is photodiode. The photodiode is a device that operates in reverse bias. The photodiode exhibits an increase in reverse current with light intensity. A diode is which the reverse current varies directly. So there are many types of diode we can see here. I am not explaining this much more because it's not a theory session. We will practically check its output, or we will provide some inputs and simulate it on our software, which is the basics of our class. So here is the photodiode, a laser diode. A laser diode look like this, and a small signal diode look like this.
large signal diodes, Zener diode. Zener diode is especially a diode designed for limiting the voltage across its terminal in reverse wise. A Zener diode maintains a nearly constant voltage across its terminal over a specified range of Zener current. The Zener diode reverse breakdown, बेसिकली ये जेनर डायोड जो है ये आपका रिवर्स वाइज में काम करता है. बाकी जो नॉर्मल डायोड होंगे आपके वो फॉरवर्ड वाइज में काम करेंगे. पर इसका एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा. ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा कि जब हमारा जो ये मैन्युफैक्चरर है जेनर डायोड का, वो हमें प्रोवाइड करेगा कि कितने वोल्ट का ये जेनर डायोड है. सपोज अगर इट्स 3.1 वोल्ट और 4.5 वोल्ट और 5.1 वोल्ट, तो व्हेन वी अप्लाइड द रिवर्स वोल्टेज ऑन इट, it will start conducting on the particular voltage. Zener diode is a silicon PN junction device that is designed for operate in the reverse breakdown region. The breakdown voltage of a Zener diode is set by carefully controlling the doping level during manufacturing. When a diode reach reverse breakdown, its voltage remain almost constant even through the current change drastically. And this is the key of a Zener operation. There are many applications of Zener diode where we can use it as a voltage regulator also. So this is the Zener diode, and the symbol of Zener diode is something different. You can see there. Another one is varactor diode, a variable capacitance diode. It's also called a variable capacitance diode. It's look like this type. Tunnel diode, Shockley diode, pin diode. There are many more diodes. So we are not going to the explanation of all the diodes type. Now we are just looking for the VI characteristic of the simple diode. So this is the VI characteristic of the diode. Here you can see the reverse wise region, forward wise region. Actually the both axis, this is our x axis and this one is our y axis. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. यहाँ पर जैसे ही हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आप देख रहे हैं कि डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है. तो यहाँ जो करंट फ्लो होना हो सकता है, बेसिकली डायोड में जो फॉरवर्ड वाइज रीजन होता है, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज होता है, वो 0.3 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट होगा. और फॉर मोस्ट केसेस इन लाइक एलईडी देयर आर सम मोर वोल्टेज लाइक 3 वोल्ट 5 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द कलर्स. और जो रिवर्स यहाँ पर आप देखें रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है कि जब हम अपने डायोड पर रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, मींस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमारा कैथोड पर रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल एनोड पर रहेगा. तब हम यहाँ से जो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में डायोड हमारा कंडक्शन स्टार्ट कर देगा रिवर्स वाइज में. Suppose for normal diode, it will be approx 100 volt or 50 volt. It depend on the manufacturer. ये जो यहाँ पर है ये रिवर्स लीकेज करंट है. आइडियली होना ये चाहिए कि फॉरवर्ड वाइज में डायोड को यहाँ 0 से ही कंडक्शन 0.1 वोल्ट या समथिंग से कंडक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए. और रिवर्स वाइज में तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिवर्स वाइज में ऐसे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस के जैसे काम करना चाहिए. पर ये इन्फिनिटी रेजिस्टेंस के जैसे काम नहीं करेगा. यहाँ पर ये लीकेज करंट इसमें दिख रहा है, ये हल्का सा जो नीचे जा रहा है ये लीकेज है. इसी को हम बोलेंगे रिवर्स बायस रीजन. और जहां से ये कंडक्शन स्टार्ट कर देगा ये रिवर्स ब्रेकडाउन होगा. बेसिकली जेनर डायोड में आपका ये जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग 5.1 वोल्ट का जेनर है, तो 5.1 वोल्ट पर रिवर्स में वोल्टेज चालू कर देगा, कंडक्शन स्टार्ट कर देगा. सो हम बेसिक हमने कैरेक्टर देख लिया है डायोड का. नाउ वी आर मूविंग टू द सॉफ्टवेयर साइड. सो हम एक बेसिक डायोड लेकर के उसका कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है आपको, ये ऐसा दिखता है. प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूं और साथ में आप लोगों को भी करना है.
सो पहले हम एल टी स्पाइस में इसको सिमुलेट करके देखते हैं कि डायोड के कैरेक्टरिस्टिक कैसे सिमुलेट करते हैं और उसका आउटपुट रिजल्ट हमें कैसा दिखता है। उसको अलग अलग डीसी एनालिसिस, उसका एसी एनालिसिस करके देखेंगे। तो हमारे पास में दो ईडीए टूल्स हैं, एक एल टी स्पाइस है एंड अनदर वन इज कीकैड। सो फर्स्ट हम एल टी स्पाइस पर इसको करके देख रहे हैं। To perform the VI characteristic of a diode, we need majorly three component. First one is voltage source. Another one is the diode that we are going to simulate, and the other one is a series resistors. बेसिकली अगर हम सीरीज रेजिस्टर्स वहां पर नहीं कनेक्ट करेंगे तो डायोड से पूरा करंट फ्लो हो करके सोर्स में ही चला जाएगा। तो वहां पर हमें एक सीरीज रेजिस्टेंस भी लगाना है। मैं एल टी स्पाइस ओपन कर रहा हूँ और साथ में ये आप लोगों को भी हैंड्स ऑन करके देखना है। जो भी प्रॉब्लम आती तो हम लोग पुनित सर हैं, मैं हूँ, अवेलेबल है यहाँ पर। जो भी प्रॉब्लम आती तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैंने एल टी स्पाइस ओपन कर लिया है, जैसा कि आप पहले भी अभी के सेशन में इस पर काम कर चुके हैं। हमें यहाँ पर पहले तो एक स्केमेटिक क्रिएट करना है, तो फाइल मेन्यू में जा करके हम एक न्यू स्केमेटिक क्रिएट करेंगे। ये मेरी स्केमेटिक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर हमें अपने बेसिक कंपोनेंट्स लेना है, ये साथ में आप लोगों को भी करना है। होप सो आप लोग भी कर रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अगर कोई ऐसा इशू आता है तो। सारे कंपोनेंट हम यहाँ से पार्ट्स या कंपोनेंट्स करके सॉफ्टवेयर में यहाँ से लेंगे। कंपोनेंट पर क्लिक करता हूँ मैं। सो फर्स्ट वी रिक्वायर्ड सोर्स, voltage source. We will type voltage here and just place it here. Another one is diode. Diode डायोड को अगर रोटेट करना है तो कंट्रोल आर के साथ में प्लेस करने से पहले आप रोटेट कर सकते हैं। मैं इस डायरेक्शन में रख लेता हूं इसको। और एक रेजिस्टेंस, ये मेरे तीनों कंपोनेंट आ गए हैं। आप लोग भी कंपोनेंट ये प्लेस कर लीजिए। होप सो कंपोनेंट आपने प्लेस कर लिए होंगे। अब इसको हमें कनेक्ट करना है, तो वायर टूल है, ये रहा येलो कलर से पेंसिल मार्का दिख रहा है जो आपका, ये वायर टूल है। सर हम लोग प्लेस कर रहे थे, 2 मिनट के लिए रुकेगा। ओके सर। I think we should give the time to participants also for placing the components. It takes time. सर रोटेट करने के लिए क्या करना है सर? रोटेट करने के लिए जब हम प्लेस कर रहे हैं कंपोनेंट, उसके पहले ही कंट्रोल प्लस आर। बाद में नहीं होगा सर? जैसे सपोज मैंने ये एक रजिस्टर लिया, ये आ गया, अभी मैंने प्लेस नहीं किया हुआ है इसको,
मैं यहाँ पर कंट्रोल और आर, ये रोटेट हो रहा है सर। कंट्रोल एंड आर। कंट्रोल एंड आर। ओके ओके सर। आफ्टर प्लेसिंग इट इज नॉट अलाउड सर। हाँ सर, आफ्टर प्लेसिंग अलाउड नहीं है, उसको फिर आपको डिलीट करके दोबारा से कंपोनेंट लेना होगा। ओके ओके ये लिमिटेड एडिशन है शायद। ओके ओके सर। यस। वायर टूल को लेकर के मैं कनेक्शन कर देता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। वायर टूल को लेने के बाद में आपको एस्केप प्रेस करना होगा, अदरवाइज वायर टूल आपका साथ में चलता रहेगा। ये प्लस आ रहा है, अब अगर कहीं भी आप इसको मूव करने के लिए क्लिक करेंगे तो ये आपका वायर दिखाने लगेगा, तो आप एस्केप प्रेस अगर कर देंगे तो ये आपका वायर टूल हट जाएगा, या राइट क्लिक करके एंड भी कर सकते हैं। डन सर डन। सभी पार्टिसिपेंट का डायग्राम रेडी हो गया होगा, डन हो गया है सर, ठीक। अब हमें इस डायोड के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि डायोड, कौन सा डायोड हम यूज करने वाला, आपको वो डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप पिक अ न्यू डायोड पर क्लिक करेंगे तो जो वेरी बेसिक डायोड्स है, दिस इज 1N4148, ये आपकी डायोड की लिस्टिंग है। यहाँ पर सारे डायोड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। शॉर्ट की, जेनर, वेरेक्टर, सिलिकॉन, एलईडीज, ये सारे डायोड्स अवेलेबल हैं। जेनर में अलग अलग वोल्टेज के डायोड्स हैं, 6.2 वोल्ट, 33 वोल्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसका हृदय सर, 6.2। एक यस बार सर। वापस से स्टेप रिपीट कर दीजिएगा। डायोड है आपका ये, डायोड पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिक न्यू डायोड, click on pick new diode, so it will ask for select diode. You can choose any one diode from here. We are choosing very basic diode 1N4148. Just click on OK. अब हमें यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। डायोड जैसे ही हमने 1N4148 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये 1N4148 लिखा हुआ आ गया है, डायोड के नीचे सभी लोगों का आ गया होगा जिन्होंने सिलेक्ट किया है। अगर आप कोई दूसरा डायोड सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर उसका नंबर आ जाएगा। और आप चाहें तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक वेरीफाई करने हैं तो आप इस डायोड की डाटा सीट डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो हमारे सिमुलेशन का रिजल्ट्स होगा। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस, इसकी एक वैल्यू हमें देनी है, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके वैल्यू देने के लिए राइट क्लिक करेंगे, और ये पूछेगा रेजिस्टेंस, तो ये ओम्स में है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है, तो मैं दे देता हूँ 200 ओम्स, और ओके कर दिया।
200 ओम दे दिया है और ओके कर दिया। यहाँ अब हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। हमें किस फॉर्मेट में इसको एनालिसिस करना है, डीसी एनालिसिस करना है, ट्रांजिएंट करना है, या एसी एनालिसिस करना है। बेसिकली जो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डीसी एनालिसिस में ही देखे जाएंगे और वो लीनियर आउटपुट होगा। मींस हम वहां पर स्टार्टिंग में वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। सपोज 0 वोल्ट से हमने वोल्टेज देना स्टार्ट किया, तो कौन सा एक पर्टिकुलर वोल्टेज है जहां जाकर के डायोड फॉरवर्ड वाइज में कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम वो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे करना है, सिमुलेशन में जाना है और एडिट सिमुलेशन कमांड, सिमुलेशन में जाइए और सिमुलेट में जाइए और एडिट सिमुलेशन कमांड, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलेंगे, ट्रांजिएंट, एसी एनालिसिस, डीसी स्वीप, नॉइज, डीसी ट्रांसफर और डीसी आउटपुट। कल के सेशन में सर ने एक वोल्टेज डिवाइडर बना के बताया था, वहां पर आपको डीसी आउटपुट एक बेसिक हमने 12 वोल्ट दिया था और वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हमें 6 वोल्ट बना था, तो हमने वहां पर ये डीसी आउटपुट पे किया हुआ था। अभी हमें डीसी आउटपुट पे नहीं करना है, हमें डीसी स्वीप पर करना है, क्योंकि हमें धीरे धीरे वोल्टेज उसका बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप डीसी स्वीप, just click on DC sweep and provide the first source of sweep. So first source is V. So we will provide V. Type of sweep, लीनियर सिमुलेशन करना है तो हमें लीनियर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें लीनियर वोल्टेज अप्लाई करना है 0 से लेकर के कुछ एक वोल्ट तक, पर्टिकुलर सपोज 5 वोल्ट। यहाँ पर हमने लीनियर सेलेक्ट करना है। स्टार्ट वैल्यू हमारी होगी 0 वोल्ट। स्टॉप वैल्यू कहाँ पर जाकर के रुकना है, तो अभी मैं दे देता हूँ। सपोज अगर मेरा ये जो जनरल डायोड है ये 0.7 वोल्ट से कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, तो मैं इसको 0.9 वोल्ट देता हूँ सपोज। और इंक्रीमेंट, हमें किस स्टेप से वोल्टेज को इंक्रीज करना है। सपोज हम यहाँ पर मिली वोल्ट में दे सकते हैं, तो मैं 0.01 वोल्ट दे देता हूँ। ले लिया मैंने और यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ये प्लेस कर दिया। वोल्टेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने डाल दी है, 0 से लेकर के 0.9 वोल्ट, और जो स्टेप है वो 0.01 वोल्ट का है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। डायरेक्टली प्रेस ऑन रन। द सर्किट डजंट हैव अ कंडक्शन पाथ टू ग्राउंड, प्लीज फ्लैग अ नोड एज अ ग्राउंड। हमने यहाँ पर ग्राउंड नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसने एरर दे दिया। तो आपको करना क्या है, यहाँ से ग्राउंड लेंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सभी लोग कर रहे होंगे। सर वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है? अभी दिया नहीं है ना वोल्टेज की वैल्यू। वोल्टेज की वैल्यू सर यहाँ नहीं दी हमने। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इसका डीसी स्वीप मोड में हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम वोल्टेज की वैल्यू देते हैं तो पर्टिकुलरली वो 1 वोल्ट पर फिक्स हो जाएगा। सपोज हमने 5 वोल्ट दे दिया तो वो 5 वोल्ट पर डायरेक्ट कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। पर हमें करना क्या, हमें लीनियर वोल्टेज देना है। इसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाएंगे, तो इसको बोलते हैं डीसी स्वीपिंग। तो हमने यहाँ पर सिमुलेट में जाकर के एडिट सिमुलेशन कमांड, और यहाँ ये डीसी स्वीप में 0 से लेकर के 0.9 ये वैल्यूज दी हुई है। यहां पर भी लिखा आ रहा है डॉट डीसी वी 0 to 0.9, और जो स्टेप है वो 0.01। इसको रन करके देख लेते हैं। जो ग्राउंड मैंने कनेक्ट नहीं किया था, जिससे उसने एक एरर बता दी थी ग्राउंड पाथ की, वो हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। एलटी स्पाइस में सारे मॉडल्स जो हैं आपके वो सिमुलेटेबल हैं, और कीकैड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सारे मॉडल्स सिमुलेटेबल नहीं है। आपको उनकी लाइब्रेरीज भी डाउनलोड करनी होती है। यहाँ आपको लाइब्रेरीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट ही सभी हैं जो स्पाइस मॉडल ही हैं। तो मैं यहाँ इसको सिमुलेट कर देता हूँ, सभी लोगों का हो गया होगा। इसको रन करते हैं।
डीसी स्वीप सोर्स वी नॉट फाउंड। ओके, हमने V1 दिया हुआ था। वोल्टेज सोर्स हमारा V1 है। ये मैंने इसको रन कर दिया है। इसने एक पॉपअप विंडो दी है, एरर ऑन लाइन 2 V1 अननोन पैरामीटर V। इसको हम चाहे तो छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने वहां पर वोल्टेज स्टार्टिंग में एज्यूम्ड V1 मिसिंग वैल्यू एज्यूम्ड 0 वोल्ट, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको 0 वोल्ट एज्यूम कर लिया स्टार्टिंग में। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। और हमारा अगर रिजल्ट देखना है इसका, तो यहाँ पर मार्कर को लेकर के मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, 0 वोल्ट से लेकर के ये 900 मिली वोल्ट, मतलब 0.9 वोल्ट। अभी ये जो वोल्टेज दिख रहा है आपका, ये हमारा सोर्स का वोल्टेज है V1 का। 0 से लेकर के, अगर हमें इसका कंडक्शन देखना है तो हमें यहाँ का वोल्टेज देखना होगा अक्रॉस D1। ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं ये वोल्टेज हमारा लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। पर एज प्रॉपर्टी ऑफ डायोड यहाँ ये कंडक्शन नहीं करेगा। ये कहाँ पर जाकर के कंडक्शन कर रहा है, धीरे धीरे 450 मिली वोल्ट से इसने कंडक्शन करना स्टार्ट किया है। ये देखिए, ये फॉरवर्ड वाइज के कैरेक्टरिस्टिक हैं। जो ग्रीन सिग्नल्स है वो हमारा इनपुट है, जो कि लीनियरली 0 वोल्ट से लेकर के 900 मिली वोल्ट, या हमने जितना दिया हुआ है 0.9 वोल्ट, वहाँ तक जा रहा है लीनियरली। पर अकॉर्डिंगली जो डायोड है उसका जो कंडक्शन है वो यहाँ पर 540 मिली वोल्ट से स्टार्ट 450 मिली वोल्ट के अक्रॉस चालू हो रहा है कंडक्शन। ये हमारा वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, सॉरी वोल्टेज का ही ग्राफ है, अभी दोनों वोल्टेज ही दिखा रहे हैं। अगर हमें करंट देखना है तो यहाँ पर आप डायोड पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये करंट दिखने लगेगा। यहाँ पर रेड कलर से जो दिख रहा है ये करंट है। धीरे धीरे करंट आपका इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। किसी को कोई एरर तो नहीं आ रही है? सर प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेरे इसमें स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। हाँ, सारी स्ट्रेट लाइन आ रही है क्या सर? हाँ सर, एक ही स्ट्रेट लाइन, हाँ एक स्ट्रेट लाइन ही है, सिंगल बस। कहाँ पर आपको क्या करना है कि जो प्रोब है, जैसे आप ये सिग्नल्स के ये दिख रहे हैं आपको ऊपर, यहाँ नीचे में प्रोब, हाँ। यहाँ अगर क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। लेकिन मैं अगर यहाँ क्लिक करूंगा तो ये इसका कंडक्शन है। जब कंडक्शन स्टार्ट होगा तब जाकर के वो कर्व के फॉर्म में आएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सर आपको, उसके बाद भी क्लिक किया तो भी वो स्ट्रेट लाइन ही दिखा रहा है। आपने ये डायोड सिलेक्ट किया है 1N4148? 1N4148 सेलेक्ट किया है सर, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करके देखिए, हो सकता है कुछ। सर ये बॉटम कॉर्नर पे ये विंडो खुल के आ रहा है, हॉरिजॉन्टल 500 मिली वोल्ट, वर्टिकल 0 वोल्ट, कर्सर 1 कर्सर 2। सर लैंडस्केप में लेके आइए सर, तो क्लियर होगा वीडियो। लैंडस्केप में ऑटो रोटेट में लेके आएंगे, अभी क्लियरली दिखा नहीं सर।
नहीं, आपका सिर्फ रोटेट हुआ है, ऑटो रोटेट करिए सर आपके मोबाइल को। पोर्ट्रेट लैंडस्केप रहता है ना सर। ऑटो रोटेट, एक मिनट से ऊपर से करना पड़ेगा। ओके, और यू कैन शेयर द स्क्रीन सर, यू कैन शेयर योर स्क्रीन तो ऑल्सो। एक्चुअली मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ये दिख चल रहा है एक्चुअली। आप मोबाइल से तो ये एक्चुअली ऐसा आ रहा है। अब दिख रहा है। हृदय सर पिन करके देख सकते हैं आप इनको, इनका वीडियो पिन कर लीजिए आप। हाँ सर, बाकी सभी पार्टिसिपेंट का आ रहा है सर आउटपुट? वो प्रोब नहीं ले रहे हैं सर, प्रोब का बता दीजिए सर को। प्रोब ले सर ये जैसे लीजिए। सपोज यहाँ पे किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, कहाँ पर? हाँ, यहाँ आपने ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके, यू चेक सर, स्वीप आपने जो दिया होगा उसमें कहीं कुछ आपने सर स्वीप क्या दिया, 0.1 से 0.01 दिया हुआ है। 1 दिया है, यस सर। ऑन ही नहीं हो रहा है ना, डायोड ऑन ही ओके, नहीं हो मैं रहा है। 0.1 से 0.9 कर दे रहा हूँ इसको मैं। सर, हाँ आपने जो 0.0 ये देखिए सर 0.9 है 0.01 है सर, मुझे क्लियर ये दिख सर देखिए 0.9 है सर, अभी 0.9 कर दिया मैंने। 0 to 0.9 और जो स्टेप है वो 0.01 है। स्टेप आप कम रखिए सर। ओके, स्टेप वो 0.01 ही है सर। 0.0 नहीं है। ग्राउंड नहीं है सर। सर ग्राउंड ये दिया हुआ है। ओके, कनेक्टेड, अच्छा वो एरर आ जाता नहीं तो। एक ठीक है बार सर, आप चेक फिर से करिए सर, नहीं तो क्लोज फिर करके एक बार फिर से उसको ड्रॉ करके देखिए, कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं ओके ओके, मैं फिर ट्राई करता हूँ। क्योंकि ओके, थैंक यू। लोगों का आ गया है। 1 मिनट सर होल्ड करिए, मैं देखता हूँ। ओके, हेलो सर। हाँ गजानन सर। हेलो, हाँ सर। हाँ एक्चुअली अभी पुनीत सर ने चेक किया आपका सर्किट, वहां पर आपने सोर्स देखिए, आपने V2 सोर्स ले रखा है शायद। जैसे कि मेरे ओके, सर्किट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ V1 हाँ है, हाँ, तो वो ठीक ठीक बेसिकली ठीक, इसको V2 चेक करता हूँ करा होगा। एक बार आप उसको चेक कर लीजिए। मैं। वो ओके, तो V2 लॉजिकल प्रॉब्लम है वो यहाँ तो मैंने V1 डायग्नोस्टिक। लिया है। हाँ तो ओके, मैं उसको, इसको एडिट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ, मैं फिर से कनेक्ट हाँ करके देखता हूँ आप इसको। उसको फिर से ओके ओके देखिए, तब तक हम लोग कुछ आगे ओके, का थैंक यू। देखते हैं। सर ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू। डिलीट करने की जरूरत नहीं सर, आप सिर्फ जो कमांड है उसी को चेंज कर जी लीजिए। कमांड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो भी एडिटेबल है। सर इसी में राइट क्लिक करूँ क्या मैं? नहीं, नीचे जो कमांड डली हुई है ना सर, .dc, ये यहाँ पर ऐसे इस पर डबल क्लिक, ये राइट क्लिक करके होगा। जैसा सर हृदय सर बता रहे हैं वैसा फॉलो कर लीजिए। ये ओके सर। डबल क्लिक कर लीजिए सर इस पर, राइट क्लिक। किया क्या सर? चला गजानन सर? हेलो हाँ सर, चला क्या? सर, इसको चेंज नहीं हो पा रहा है मेरे से, कैसे करना पड़ेगा चेंज इसको? राइट क्लिक कर दीजिए सर उस पर, या तो उस पर राइट क्लिक कर दीजिए, या फिर आप यहाँ से फिर से इसको क्लोज कर दीजिए सिमुलेशन को, और सिमुलेट में जा करके दिख पा रहा है सर? मैं ये सिमुलेट में जा करके एडिट सिमुलेशन कमांड, इसमें जाएंगे तो यहाँ से आप सोर्स चेंज कर सकते हैं V1।
जहां पर हमने वोल्टेज सोर्स के इनपुट्स दिए थे। एक्चुअली सर आपका स्क्रीन मिस हो गया, मुझे फिर से करना पड़ेगा शेयर करके हो। स्क्रीन देख पा रहा हूँ मैं आपकी, मैं रिसेट कर रहा हूँ फिर से। हाँ सर। क्यों आ रहा है यार? Hope so other participants are able to draw and visualize the characteristic of the diode. Hridesh sir, यस सर। could you please kindly repeat back the complete process once more? ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सारे सॉफ्टवेयर्स। ये एल टी स्पाइस ओपन है मेरा। यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाना है, सारे पार्टिसिपेंट जिसका आ गया हो वो भी देख लें एक बार, और जिनका नहीं आया है तो वो भी एक बार इसको फॉलो कर लें। स्पेशली गजानन सर को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। न्यू स्केमेटिक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये विंडो ओपन होकर के जाएगा। स्केमेटिक के लिए है। यहाँ पर हमने जो कंपोनेंट लेने थे वो 3 कंपोनेंट थे, एक वोल्टेज सोर्स, एक डायोड और एक रजिस्टर। तो वोल्टेज सोर्स के लिए मुझे यहाँ पर वोल्टेज टाइप करना है। ये वोल्टेज आ गया मेरा, वोल्टेज सोर्स। डायोड के लिए डायोड, डायोड आ गया। डायोड को रोटेट कर लेते हैं कंट्रोल आर से, प्लेस करने के पहले इस डायरेक्शन में ये रख दिया। यहाँ पर रजिस्टर के लिए सिंपल आर ई रजिस्टर आ गया। इसको ये प्लेस कर लेते हैं। वायर टूल से कनेक्ट कर देते हैं सभी को। अब डायोड में जो भी डायोड हमें लेना है उसको सिलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके पिक न्यू डायोड। तो हमने बेसिक डायोड 1N4148 लिया हुआ था। एक बार हमारा इस पर सक्सेसफुल वो दिखा देगा आपको सिमुलेशन और वीआई कैरेक्टरिस्टिक उसके, तो हम चेंज करके दूसरा डायोड भी ले सकते हैं। अभी हम 1N4148 ही ले रहे हैं। रजिस्टर की एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो मैंने यहाँ पर 200 ओम 200 ओम प्रोवाइड कर दिए। और वोल्टेज सोर्स अभी हमें कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पर हमें सिंपली सिमुलेशन में जाकर के एडिट सिमुलेशन कमांड ये चलाना Ground node. है। सॉरी, ग्राउंड और ऐड कर देते हैं। सिमुलेशन में जाकर के एडिट सिमुलेशन कमांड और इसका डीसी स्वीप में एनालिसिस करना है। तो हमारा जो सोर्स है वो V1 है, तो यहाँ V1, टाइप ऑफ स्वीप लीनियर, स्टार्ट वैल्यू 0 वोल्ट, स्टॉप वैल्यू अभी 0.9 वोल्ट दी हुई है। तो जो इंक्रीमेंट है वो मेरा 0.01 वोल्ट। ओके कर दिया और इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। सिमुलेट में जाकर के रन, जैसे ही हमने रन करा इसने एक एरर दी हमको कि मिसिंग वैल्यू एज्यूम्ड 0 वोल्ट। इसको हमें
क्लोज कर देना है। और अब हमें जहां भी जिस चीज का वोल्टेज देखना है, ये प्रोब को ले जाकर के वहां प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने V1 का वोल्टेज देखना है तो ये प्लेस कर दी। यहाँ पर V1 हमारा लीनियर आउटपुट है, 0 वोल्ट से लेकर के 0.9 वोल्ट तक जा रहा है। और अगर हमें डायोड से जो वोल्टेज फॉरवर्ड वाइज में बाहर जा रहा है उसको देखना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो ये हमारा कंडक्शन यहाँ से इसका स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक है एक सिंपल डायोड का। और अगर हमें करंट देखना है अक्रॉस द डायोड तो हम यहाँ पर डायोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे ही वोल्टेज हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, डायोड ने फॉरवर्ड वाइज में कंडक्शन स्टार्ट कर दिया है और वो जाकर के यहाँ 450 मिलीवोल्ट से स्टार्ट होना चालू हो गया है और यहाँ तक जाकर के अप्रॉक्स 8 वोल्ट तक या 900 वोल्ट तक ये और बढ़ गया, वोल्टेज भी और करंट भी। अभी जो हम आउटपुट देख रहे हैं ये हमारा अक्रॉस द डायोड आउटपुट नहीं है, अभी हम डायोड के दूसरे एंड पर बस देख रहे हैं। अगर हमें एक्चुअल अभी हमने जो आउटपुट देखा है वो हम अक्रॉस द डायोड नहीं देख रहे हैं, अभी हम इस पॉइंट पर देख रहे हैं। अगर हमें अक्रॉस द डायोड देखना है कि इस डायोड के अक्रॉस कितना वोल्ट है, क्योंकि हम सिमुलेशन में देख रहे हैं कि वो हमारा जो आउटपुट है वो डायरेक्टली बढ़ता जा रहा है। सिमुलेशन प्रोफाइल सेट है, फिर से एक बार रन करता हूँ। ये देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पॉइंट के बाद भी ये वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, पर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक में क्या होना था कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर आकर के उसे स्टेबल हो जाना चाहिए था। करंट बढ़ेगा पर वोल्टेज वहां से वो कंडक्शन होना स्टार्ट कर देगा। तो हमें अक्रॉस द डायोड वो वोल्टेज देखना है। तो उसको देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर लेवल है, ये लेवल लेना है आपको। एक लेवल का मैं नाम दे देता हूँ एक्स। ओके, इसको यहाँ प्लेस कर दिया। एक्स लेवल को मैंने यहाँ पर प्रेस कर पिन कर दिया है। और यहाँ पर एक और लेवल लेकर के नेट लेवल, उसको मैंने वाई उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब ये सॉफ्टवेयर हमें फैसिलिटी देता है कि हम इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज को डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। तो वो कहाँ से देखना है, बाकी की वैल्यूज सारी सेम रहने देते हैं। सिमुलेशन में जाकर के फिर से रन करते हैं। अभी ये हमारा वाई वोल्ट है। अगर हम इस नेट का दिखा रहा है, अगर हमें चेंज करना है तो हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे हमें इसमें स्केल दिखाने लगेगा। ये एक येलो कलर से स्केल दिख रहा है, उस स्केल पर हम राइट क्लिक करेंगे और जो हमारी क्वांटिटी प्लॉटेड है, अभी ये V1 है, इसको हम X माइनस V Y, इसको हमने VX माइनस VY कर दिया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले चैट हमने विंडो में डाल दीजिए सर आपने जो टाइप किया था। हमारा वोल्टेज सोर्स V है, तो यहाँ पर मैंने दो लेवल लिए हैं, एक X और एक Y। हम करने ये वाले हैं कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखना है हमें। तो जो अक्रॉस वोल्टेज होगा वो होगा VX माइनस VY। तो मैंने यहाँ पर ये स्केल, ये जो विंडो दिख रही है इसमें स्केल पर जाएंगे और स्केल पर येलो स्केल आ गया, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारा वो ओपन होकर के आएगा और वहां पर क्वांटिटी प्लॉटेड
वहां पर पहले V1 लिखा हुआ था कि वो V1 की हमें प्लॉट दिखा रहा था, पर हमें V1 का नहीं देखना है। अगर हमें डायोड के कैरेक्टरिस्टिक देखने तो हमें अक्रॉस द डायोड देखना पड़ेगा, और इस सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी है कि हम दोनों के डिफरेंस को देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर Vx माइनस Vy मैं चेक बॉक्स में डाल देता हूं। तो अब आपका ये जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है डायोड का, वो यहाँ पर दिखाने लगेगा आपका। ये देखिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर आकर के, अभी हम इसको एक बार करके देखते हैं। जैसे अभी मैंने इसको 0 से 0.9 वोल्ट दिया था, अब हम इसको 0.9 को और आगे बढ़ा के देखते हैं। अब मैं थोड़ा और वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, 0.9 की जगह मैं यहाँ पर 1.5 वोल्ट कर देता हूँ। रन करके देखते हैं। फिर से वही प्लॉट करा और यहाँ पर स्केल में जाकर के V X V Y, यहाँ पर इसने अप्रोक्स 630 या 700 मिली वोल्ट यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट करना स्टार्ट किया 420 मिली वोल्ट से, जो कि हमारी पीपीटी में भी आप देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर ये इसका फॉरवर्ड बाइज रीजन है। अप्रोक्स 700 मिली वोल्ट के इसने यहाँ से इसका फुल कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट 420 से हो गया था और ये चलेगा 700 मिली वोल्ट तक के अप्रोक्स। इसी को अगर हमें माइनस में वैल्यूज दे करके देखना है कि जब हम माइनस में, हाँ इसका करंट और देख सकते हैं। यहाँ पर करंट देखने के लिए T1 पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, एक रेड कलर का मार्का आएगा, ये देखिए ये ID1 अक्रॉस द डायोड। अभी मैंने इसमें 1.5 वोल्ट कर दिया था। अब आप चाहे जितना भी वोल्टेज इसमें इंक्रीज करें उससे कोई, क्योंकि इसने कंडक्शन स्टार्ट 0.7 वोल्ट या 700 मिली वोल्ट पर इसने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से और बढ़ा देता हूँ, 1.5 को 5 वोल्ट कर देता हूँ। स्टेप मेरा सेम रहेगा 0.01 और इसको मैंने ओके कर दिया। सिमुलेट में जाकर के रन करते हैं, ये विंडो आएगी, इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको कहीं भी एक पॉइंट पर हमें देखना है, x माइनस वाई पे देखना है। तो यहाँ मैं पहले ये देख रहा हूँ, ये हमारा डायोड के अक्रॉस नहीं है, ये हमारा इस नेट पर है, y नेट पर वी वाई पर। अगर हमें इसे चेंज करना है, अक्रॉस द डायोड देखना है, तो Vx माइनस वी वाई करना है। कहाँ से करेंगे ये? स्केल, जैसे ही हम इसको यहाँ लेकर के आएंगे, ये हमारा स्केल आ जाएगा येलो कलर से। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस करके एक विंडो पॉपअप होगी। यहाँ पर क्वांटिटी में V1 है। अभी इसको V1 को मैं Vx माइनस Vy डिफरेंस और ओके कर दिया। सर ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कर रहा हूँ सर मैं V1 Vx माइनस Vy, तो यहाँ पे अनडिफाइंड सिंबल एरर आ रहा है। Vx माइनस Vy करें तो अनडिफाइंड सिंबल एरर आ रहा है सर। सर चैट बॉक्स तो जिस तरह का दिया है ना, मेंशन किया है, एग्जैक्टली वैसे ही टाइप करिए। उसमें अगर कुछ डिफरेंशिएशन करेंगे तो एरर आ जाएगी। ओके
वी पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स हैं, ओके उसमें ओके एक्स ओके, लिखा हुआ ठीक है। ठीक 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 ठीक। हाँ सर आ गया, थैंक यू। आ गया सर, प्लॉटिंग भी ये दिख गया होगा आपको। अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो है डायोड का, ये फॉरवर्ड वाइज में इस टाइप का होगा, और अगर हमें इसे रिवर्स वाइज में देखना है तो हमें जो वैल्यूज है वोल्टेज की वो नेगेटिव में देनी होगी। तो उसके लिए इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर से मैं अपनी सिमुलेस जो एडिट सिमुलेशन कमांड है वहां जा करके यहाँ पर अब जो स्टार्ट वैल्यू है मेरी वो मैं माइनस से देना स्टार्ट करूंगा। अभी हमने 0 से दी थी, अब हम इसको देते हैं माइनस, सपोज -5 से। में x v x माइनस v y। ओके, ये कंडक्शन नहीं कर रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं डायोड। करंट देख लेते हैं। लाइट आ गई हृदय सर, कुछ मतलब हैंग हो गया। यस सर, सभी सर पार्टिसिपेंट का हो गया है। नेक्स्ट क्या करें? जी 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 सर, रिवर्स भी अभी कर सर हमने पाएंगे क्या इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल सर, रिवर्स भी करके देखेंगे इसमें हम। अभी हमने रिवर्स करके देखा, अभी हमने क्या किया कि -5 वोल्ट तक दिया, तो इसमें इसने ब्रेक डाउन तो नहीं है, मगर हम कुछ और भी जी डायोड हैं ओके, उसमें। ये ऊपर इस जैसे तरह जेनर, से दिखा रहा है, इसको अपन प्लॉट इस तरह से कर हाँ रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर रहे हैं। ये फर्स्ट ओके क्वाड्रेंट ओके में ही कर रहे हैं। अगर हम जेनर डायोड पर काम करेंगे तो वो रिवर्स वाइज में भी काम करेगा। तो हम एक सिमिलर सर्किट बना करके वहां पर जहां हमने 1N4148 डायोड लिया हुआ था उसकी जगह पर हम एक जेनर डायोड ले सकते हैं। अभी हमने 1N4148 डायोड लिया हुआ था, इसकी जगह पर हम जेनर डायोड ले सकते हैं। जेनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज डिफाइन होगा, तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाकर के वो रिवर्स वाइज में भी करंट का फ्लो करने लगेगा। वो भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। होप सो सभी लोगों का हो गया होगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि इसका एक बार डीसी एनालिसिस हमने करके देख लिया डीसी स्वीपिंग में, इसका एसी एनालिसिस करके और देख लेते हैं। एसी एनालिसिस करने से क्या होगा कि
जैसे ही हम इसमें एसी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हमारा D1 है वो एज अ रेक्टिफायर काम करने लगेगा। सिंपल अगर हम साइन वेव इसमें से एंटर कराएंगे तो जो आउटपुट है हमारा वहां पर हमें साइन वेव की जगह हाफ साइन वेव मिलेगी, मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसका डीसी एनालिसिस हटा देते हैं और इसका एसी एनालिसिस करते हैं। सेम एडिट सिमुलेशन कमांड में जाकर के एसी एनालिसिस, यहां से जाना है हमें इसमें। अभी हमने जो डीसी स्वीप यहाँ पर सेट किया हुआ था, अगर हमें एसी एनालिसिस करना है तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके लिए हमें डिलीट प्रेस करना है। जैसे ही हम डिलीट प्रेस करेंगे तो एक सीजर दिखने लगेगा हमें, और उस पर ले जा करके हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डीसी एनालिसिस का जो लेवल था वो हट जाएगा। इसके बाद में एस्केप कर देंगे। सर डिलीट कैसे सिमुलेट होगा, में कैसे जा, बताएंगे? हाँ सर बताता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या करना है सर, आपको डिलीट बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पर। जैसे ही आप ओके। डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो एक सीजर दिखने लगेगी आपको हम्म। काटने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए। बस वो सीजर को ले जाके जिस भी चीज को डिलीट करना है आपको, जैसे लेवल को ओके, डिलीट हो गया करना है सर, हो गया हो गया। ये लेवल को, ठीक ठीक। और इसके बाद में आप एस्केप प्रेस कर दीजिए। एस्केप प्रेस करेंगे आप तो ये जी। लेवल हट जाएगा, ओके। सीजर। सिमुलेट में जाते हैं। अब हम इसका एसी एनालिसिस करना है तो हम यहाँ पर सिंपल साइन वेव देते हैं इसमें, राइट क्लिक करके। अभी हमने यहाँ पर डीसी वैल्यू प्रोवाइड कराई थी, अब हम डीसी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इसमें एडवांस में जा करके जहां भी आपको जिस सर्किट में सपोज एसी सोर्स देना हो, तो ये जो इसका सिमुलेशन जो पी स्पाइस में सोर्स है, ये दोनों टाइप से वर्क कर सकता है। चाहे तो आप उसको एज अ एसी सोर्स यूज कर लें और एल्स इसको डीसी सोर्स यूज कर लें। तो हम एसी की अगर वैल्यू देना है, डीसी की वैल्यू तो हम यहीं से दे सकते हैं, पर अगर हमें एसी की वैल्यू देना है तो एडवांस में जाकर के राइट क्लिक करना है सोर्स पर, एडवांस में जाकर के साइन, साइन सेलेक्ट करना है। यहाँ डीसी ऑफसेट देना है तो ये मैं 0 वोल्ट दे देता हूँ। एम्पलीट्यूड जितना भी आपको रखना है, 5 वोल्ट दे दिया सपोज। और जो फ्रिक्वेंसी है, जो साइन वेव की फ्रिक्वेंसी है जनरली 50 हर्ट्ज की जैसे हम लोगों के सोर्स में होती है, तो मैं यहाँ पर 50 दे देता हूँ। यहाँ पर वैल्यूज पहले से दी हुई हैं, वी वोल्ट, डीसी ऑफसेट, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में दी हुई है। ये तीनों चीजें यहाँ पर प्री मेंशन है, तो हमें यूनिट्स यहाँ देने की जरूरत नहीं है। बस 0 वोल्ट, 5 वोल्ट और 50 वोल्ट, तीनों चीजें दे दी हैं मैंने। इसके बाद में एक और पैरामीटर देना है हमें यहाँ पर, सीरीज रेजिस्टेंस। जो सोर्स होगा उसमें एक सीरीज रेजिस्टेंस भी होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको 1 मिली वोल्ट दे देता हूँ मिनिमम, और इसको ओके कर दिया। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया साइन 0, 5, 50, 0 वोल्ट ऑफसेट, 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड एंड 50 हर्ट्ज जो है उसकी फ्रिक्वेंसी, और जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो मेरा 1 मिली ओम का है। बाकी पैरामीटर पहले से सेट है हमारे, तो डायरेक्ट हम इसको जाकर के सिमुलेट में रन कर देते हैं। यहाँ पर मुझे स्टार्ट टाइम और स्टार्ट स्टॉप टाइम देना है।
स्टॉप टाइम मैं देता हूँ 5 मिली सेकेंड। ट्रांजिएंट एनालिसिस में, सॉरी इसका एसी एनालिसिस करते हैं, टाइम ट्रांजिएंट एनालिसिस ही होगा। 5 स्टॉप टाइम, टाइम टू स्टार्ट सेविंग डाटा 1 दे दिया मैंने, और मैक्सिमम टाइम स्टैम्प भी 0 दे दिया। मैक्सिमम टाइम स्टेप साइज मस्ट बी पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पर पहले डीसी स्वीप देखा एज अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक में, और अब हम उसका एसी एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस। वहां पर हम एसी सोर्स इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके वोल्टेज सोर्स पे साइन वेव दी, एडवांस में जाकर के, और साइन वेव के पैरामीटर हमने वहां पर एंटर किए। जो उसका डीसी ऑफसेट है वो 0 वोल्ट था। ये पैरामीटर देने के बाद में हमने इसका ट्रांजिएंट एनालिसिस किया हुआ है। यहां पर सिमुलेट में जाकर के एडिट सिमुलेशन कमांड में ट्रांजिएंट, और जो स्टॉप टाइम है हमारा ये हमने 50 मिली सेकेंड दिया हुआ है। टाइम टू स्टार्ट सेविंग डाटा 0 है, और मैक्सिमम टाइम स्टैम्प जो है वो 5 सेकेंड। इसको ओके करके रन करेंगे तो जो हमारा इनपुट है ये इनपुट साइन वेव दिख रही है। अब अगर हमें इसका आउटपुट देखना है तो इसका आउटपुट हम यहां से देख सकते हैं। ये हमारा आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर, जो पॉजिटिव साइकिल्स हैं साइन वेव की वो आउटपुट में दिख रही हैं, और नेगेटिव साइकिल में यहाँ पर आउटपुट हमारा 0 हो जा रहा है। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है।
I have an announcement, Hriday sir. Yes, sir. Sir, session 4 and 5 attendance link is there in the chat box, so all can fill and continue. So this is the half wave circuit and its output using a single diode. So when the participant is filling the form, meanwhile other participant, if you have any issue in this circuit, they can ask the question and try it at your own site if you have any queries regarding this. यहाँ पर हमने सभी लोगों के फॉर्म फिल हो गए होंगे, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। यहाँ पर हमने फिर से देखा कि कैसे एक डायोड के थ्रू हम हाफ वेव रेक्टिफायर को क्रिएट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं और यहाँ उसको सिमुलेट करके देख सकते हैं। तो जो हमारा आउटपुट है, यहाँ पर अभी इसमें एसी चॉपिंग हो रही है। अगर हमें एक स्मूथ डीसी आउटपुट चाहिए हो तो हम वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा करके वैल्यूज का उसको हम स्मूथ डीसी भी बना सकते हैं। उसके लिए हमने हाफ वेव पर किया हुआ है, इसमें हम कैपेसिटर लगा करके चेक कर सकते हैं, और एल्स फुल वेव पर भी हम फुल वेव रेक्टिफायर बना करके भी हम उसे चेक कर सकते हैं। अब फिर से मैं अपना ट्रांजिएंट एनालिसिस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सारी वैल्यूज। सोर्स भी डिलीट हो गया है मेरा। मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, अभी हमने जो 1N4148 डायोड थे, 1N4148 डायोड का हमने फॉरवर्ड वाइज में कंडक्शन देखा, पर चूंकि ये रिवर्स वाइज में अभी हमने इसका कंडक्शन नहीं देखा है, तो कुछ डायोड्स इसमें इस टाइप के भी हैं जिनका हम रिवर्स कंडक्शन देख सकते हैं, रिवर्स वाइज जो वोल्टेज है वो देख सकते हैं। तो ऐसे डायोड इसमें अवेलेबल हैं, बेसिकली जेनर डायोड होते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं। सर्किट मेरा सेम ही है अभी, आप लोग चाहें तो एक नया सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये डिजाइन्स बना रहे हैं तो आप अलग अलग जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सभी के लिए नया एक्सपेरिमेंट करें
तो वो बेटर होगा। ये फ्यूचर पर्पज से आपके पास में सेव रहेंगे, जिससे कि आप स्टूडेंट्स को और एल्स आप खुद भी अगर उस पर वर्कआउट करना चाहें तो एक मेमोरी रहेगी आपको कि सर्किट कैसे डिजाइन करना है। अगर हम सिमिलर सर्किट में चेंजेस करते जाएंगे तो बाद में जाकर के फिर हमें प्रॉब्लम होगी। या तो आप नोट डाउन करते जाएं और एल्स आप अलग अलग सर्किट डिजाइन करके सेव कर सकते हैं। मैं अभी इसी सर्किट में अपडेट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने कंपोनेंट में जाकर के फिर से एक वोल्टेज सोर्स क्योंकि डिलीट कर दिया था, मैंने वोल्टेज सोर्स ले लिया है और उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मैं एक डायोड को चेंज करता हूँ, राइट क्लिक करके पिक अ न्यू डायोड। जैसे अभी हमने 1N4148 सिलेक्ट किया था, ऐसे ही अब हमारे पास में अलग अलग टाइप के डायोड हैं। ये देखिए अब यहाँ पूरी विंडोज आ गई है सिलेक्ट डायोड करके। यहाँ पर n नंबर ऑफ डायोड हैं, उनके नंबर्स भी दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दी हुई है, टाइप दिए हुए हैं, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और जो उनके स्पाइस मॉडल्स हैं उनकी डिटेल दी हुई है। स्पाइस मॉडल में जो लैंग्वेज यूज की हुई है वो पाइथन है, तो यहाँ पर ये पाइथन की कोडिंग टाइप से कुछ दिया हुआ है स्पाइस मॉडल में ये डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं जेनर डायोड ले सकते हैं आप, और एल्स अभी जेनर डायोड से पहले एक बार जैसे हमने देखा कि अभी हमारा जो 1N4148 डायोड है वो सिंपली 0.7 वोल्ट पर कंडक्शन करना स्टार्ट कर दे रहा था, पर हमारे पास में और दूसरे भी हैं जैसे कि एलईडीज में क्या होता है कि एलईडी का जो ब्रेकडाउन फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है वो ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हम कोई भी सर्किट एक एलईडी ले लेते हैं सर्किट बनाने के लिए, सिलेक्ट पिक न्यू डायोड करके हमने एलईडी सिलेक्ट कर लिया एक और ओके। तो हमारा ये यहाँ पर एलईडी सिलेक्ट करने के बाद ये आ गया है। अब फिर से हम इसका एडिट सिमुलेशन कमांड में जाकर के और डीसी स्वीप एनालिसिस करते हैं। सोर्स V1, टाइप लीनियर, स्टार्ट वैल्यू जो है वो 0, स्टॉप वैल्यू जो हमारी है वो सपोज 1.5 वोल्ट, जो इंक्रीमेंट है वो 0.01 वोल्ट। ओके कर देते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं। सिमुलेट में जा लेबल और लगा देते हैं 2, जिससे कि हमें अक्रॉस द एलईडी वोल्टेज लेने में आसानी हो। यहाँ से हम लेबल सेलेक्ट करेंगे, लेबल नेट एक्स। सेम सर्किट है, बस इसका रिस्पॉन्स चेक करना है हमें कि रिस्पॉन्स जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो क्या आता है, कहाँ से ये कंडक्शन स्टार्ट करता है। एक्स, यहाँ पर लेबल वाई, सिमुलेट में जाकर के रन, क्लोज कर दिया। ये एरर दे रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये अक्रॉस द एलईडी चेक करना है हमें वोल्टेज, तो अक्रॉस द एलईडी चेक करने के लिए स्केल, राइट क्लिक, वी एक्स पैरेंथेसिस में माइनस वी सेम, ओके। तो ये हमारा आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर वी एक्स माइनस वी वाई। वहां जो हमने 1N4148 डायोड लिया था उसने 0.4 वोल्ट के अप्रॉक्स या 450 मिली वोल्ट के अप्रॉक्स कंडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, पर यहाँ आप देख सकते हैं एलईडी के लिए ये कंडक्शन अभी चल ही रहा है। अगर हमें चेंज करना है, यहाँ पर अभी हमने ट्रांजिएंट में 1.5 वोल्ट तक ही दिया था, हमें इसको वोल्टेज को और बढ़ाना है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्लोज कर देते हैं इसको, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये एडिट सिमुलेशन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब मैं 1.5 की जगह 5 वोल्ट देता हूँ, ओके करते हैं और इसको सिमुलेशन विंडो हमारी सिलेक्ट है पहले से, ओके करके रन कर देते हैं। अपडेट नहीं हुआ है वोल्टेज, कुछ प्रॉब्लम है।
5 वोल्ट, ओके हो गया है 5 वोल्ट एंड द स्टेप इज 0.01। रन कर देते हैं। अभी हमारा ग्राफ यहाँ तक दिखाने लगा है। अभी ये वी वाई एक्सिस ही दिखा रहा है। हमें अगर अक्रॉस द एलईडी वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पर वी माइनस वी, देखिए ये कंडक्शन एलईडी का जो फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है वो अप्रॉक्स 3 वोल्ट होता है, क्योंकि उससे लाइट इमिट होती है तो वहां पर उसके लिए ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये 3 वोल्ट पर जाकर के इसने कंडक्शन स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी एक बार अपने एंड पर करके चेक कर लीजिए ये डायोड को चेंज करके। इसके बाद में हम एक जेनर डायोड का रिवर्स जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो देखेंगे कि कैसे हमें एनालिसिस करना है। Hope so. The session is going interactively and everybody is trying to do at their end. If anybody has any type of doubts or problems, they may ask in between also during the session, because it's a to and fro session from both the side, and we would request the participants. Okay, I have got the responses. Okay, thank you. कहाँ जा रहे हो? कौन पटेल? बोलो सर। तो प्रैक्टिकली हमने ये जेनर डायोड और 1N4148 डायोड के रिस्पांस और वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखे। अब हम इसमें एक सॉरी एलईडी डायोड के और 1N4148 डायोड के, अब हम इसमें जेनर डायोड का रिस्पांस देखते हैं, क्योंकि उसमें एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा तो वो उसका रिस्पांस हमें दिखेगा, जो कि पीपीटी में मैं दिखाता हूँ। ये इस टाइप से वहां पर हमें रिवर्स लीकेज जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमें इस फॉर्मेट में दिखेगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नया सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। आप सेव कर लें इसको, फाइल में जाना है, न्यू स्कीमेटिक, सेम प्रोसेस है। आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि स्टेप्स हम जब करते हैं तो हमें याद हो जाती हैं। कंपोनेंट में जाकर के वीओ वोल्टेज सोर्स, एस्केप, डायोड, कंट्रोल आर से रोटेट और एक रेजिस्टेंस। अब हमें इस डायोड
इसको अभी हमने सिलेक्ट करके राइट क्लिक सिलेक्ट करेंगे और ये पिक न्यू डायोड है। यहाँ पिक न्यू डायोड पे क्लिक करके अभी हमने 1N4148 डायोड सिलेक्ट किया, एलईडी सिलेक्ट की। आप चाहें तो और दूसरे डायोड्स भी इसमें हैं, उनको सिलेक्ट करके सिमुलेट करके देख सकते हैं, उनका वीआई कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक डायोड ले लेता हूँ, ये डायोड ले लेता हूँ मैं, BZ X84C6V2L। इसका जो V ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 6.2 वोल्ट है। मीन्स अगर हम इसमें 6.2 वोल्ट से ऊपर का या नीचे का नेगेटिव वोल्टेज हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे 6.2 वोल्ट से ऊपर का, तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। आप चाहें तो दूसरे और भी डायोड्स हैं जिनका ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाकी सारे डायोड्स का भी यहाँ पर मेंशन है। जैसे शॉर्टकी डायोड है, शॉर्टकी डायोड है, इनका 20 वोल्ट है, किसी का 200 वोल्ट है, तो ये सारे मेंशन है। आप चाहें तो दूसरे जेनर जैसे कि ये 4.7 वोल्ट है, ये भी ले सकते हैं। अभी मैं 6.2 वोल्ट का ले लेता हूँ और ओके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये BZ X84C6V2L ये नाम से मेरा ये डायोड है, जिसका की रिवर्स वाइज वोल्टेज 6.2 वोल्ट है, एज मेंशन्ड इन द पी स्पाइस लाइब्रेरी। वायर टूल लेकर के जैसे हमने कनेक्शन पहले किए हुए थे वैसे कनेक्शन कर देते हैं। ग्राउंड पिन कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड पॉइंट आपको सारे सर्किट्स में करना कंपलसरी है, अदरवाइज ये आपको एरर देने लगता है और सिमुलेट नहीं करने देगा। तो कोई भी आप सर्किट डिजाइन करें, ग्राउंड वहां पर प्लेस कर दें। प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर सेम जो हमारा डीसी स्वीप, अभी पहले तो हमें इसकी वैल्यूज देनी है। आर की वैल्यू हमने राइट क्लिक करके 200 ओम्स, आप चाहें तो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपका जो करंट है वो चेंज होगा। सिमुलेट में जाकर के एडिट सिमुलेशन कमांड और डीसी स्वीप, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। वोल्टेज सोर्स V1 ही है अभी भी हमारा। अगर किसी का ये वोल्टेज सोर्स V2, V3 या किसी और नाम से आ रहा है तो आपको वहां पर वो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स का नाम देना है। यहाँ मेरा V1 आ रहा है तो मैंने V1 दे दिया। टाइप ऑफ स्वीप लीनियर, स्टार्ट वैल्यू 0। एक बार मैं इसको फॉरवर्ड वाइज में करके देखता हूँ, देन हम इसको बाद में रिवर्स वाइज में माइनस वोल्टेज से चला करके देखेंगे। और जो स्टॉप वैल्यू है वो मेरी सपोज 1.5 वोल्ट, इंक्रीमेंट स्टेप है 0.01। ओके करके इसका डीसी स्वीप एनालिसिस करके देख लेते हैं। ये रन किया मैंने। इस पॉइंट पर ये तो हमारा इनपुट होगा जो कि लीनियर होगा, ये हमारा आउटपुट है जो कि लीनियर तो नहीं है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज से इसने कंडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अभी हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज देख रहे हैं। अगर हमें अक्रॉस द वोल्टेज देखना है तो हमें फिर से वही लेबल लगाने पड़ेंगे, क्लोज करके। लेबल लगा देते हैं X, Y, और इसको हम रन कर देते हैं फिर से। इस पॉइंट का देगा। अब हमें अकॉर्डिंग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखना है, तो हम स्केल पे जाकर के राइट क्लिक और V, अभी V1 दिखा रहा है ये, हमें VX माइनस VY, सेम स्टेप। ओके, तो ये हमारा इसने कंडक्शन करना है यहाँ से स्टार्ट कर दिया। VX माइनस VY का ये हमें आउटपुट दिखा रहा है। अब अगर हमें इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज देखना है तो हमें नेगेटिव वैल्यूज देनी होगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। यहाँ पर सिमुलेट प्रोफाइल में जाकर के एडिट सिमुलेशन कमांड, और यहाँ जो अभी हमारी स्टार्ट वैल्यू वो 0 वोल्ट थी, अब मैं इसको -10 वोल्ट कर देता हूँ। -10 वोल्ट टू
1.5 वोल्ट अपडेट हो गई है। इसको रन कर देते हैं और ये हमारा अक्रॉस देखना है वी एक्स माइनस वी वाई, तो लेवल पे जाकर के ये रिवर्स वाइज में हमने जो वोल्टेज जेनर डायोड लिया हुआ था वो 6.2 वोल्ट पर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज था उसका। आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा कैरेक्टरिस्टिक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में ये कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और यही हमें यहाँ पर जेनर डायोड में देखने को मिल रहा है। जेनर डायोड में एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। अगर आप कोई और दूसरे डायोड लेते हैं तो उनका भी ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, पर वो अप्रोक्स 100 वोल्ट होगा। तो आप यहाँ पर 100 वोल्ट से ऊपर या किसी का 200 वोल्ट भी हो सकता है, वो दे करके भी आप उसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक को टेस्ट एंड वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार आप अपने एंड पर भी इसको करके देख लीजिए जेनर डायोड को, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रहा है, जिससे कि आपको आगे ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करने में आसानी होगी स्टूडेंट के साथ में। अगर किसी पार्टिसिपेंट को कुछ डाउट हो इसमें या कुछ एरर आ रही हो या और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एक बार आप लोग ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लीजिए अपने एंड पर, उसके बाद में हम सेम सर्किट को कीकैड सॉफ्टवेयर जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उस पर भी सिमुलेट करके देखेंगे। उसके स्टेप थोड़े से अलग होंगे और सर्किट सेम ही रहेगा। तो हमने एल टी स्पाइस में देखा कैसे डायोड के कैरेक्टरिस्टिक को या डायोड को टेस्ट एंड वेरीफाई कर सकते हैं, उसका सिमुलेशन देख सकते हैं। आप चाहें तो कोई और सर्किट्स दूसरे लेकर के सेम मेथड के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं या सिमुलेट करके देख सकते हैं। अभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर सिंगल डायोड के थ्रू देखा, आप चाहें तो फुल वेव रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको एसी सोर्स लेना है, ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल है, इसमें ट्रांसफार्मर ले सकते हैं और फोर डायोड आपको लगाने हृदय होंगे। सर, यस सर। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, प्लीज देख लीजिएगा। या मैम नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू मैंने जो यहाँ पर दी है ये -10 वोल्ट है। कहाँ से देना है आपको मैं ये बता देता हूँ। ये मैंने जैसे हमने पहले सर्किट डिजाइन किया था सेम सर्किट देना है, क्योंकि जो हमने डायोड सेलेक्ट किया हुआ है वो उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 6.2 वोल्ट है, तो इसलिए मैंने वहां पर -10 वोल्ट दिया हुआ है। आप सिमुलेट में जाकर के एडिट सिमुलेशन कमांड में स्टार्ट वैल्यू ये -10 वोल्ट दे देंगे यहाँ से। जैसे ओके ही सर। आप -10 वोल्ट देंगे तो आपको यहाँ पर ये -10, 1.5 और जो स्टेप साइज है आपका वो इंक्रीमेंट है वो 0.01 ये दिखाने लगेगा और उसको ओके कर दीजिए। ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। एक और क्वेरी है।
Yeah, unpunching. Sorry, you can save the waveform from here. Just zoom, yeah, maximize the plot and right click on the plot. Click on file, then directly print. So when you click on print, you can save as in the format, in the PDF format. So select Qt PDF writer. If you don't have, please install Qt PDF writer and then click on OK. So it will ask for ask to save the file. You can select the location here, the desktop, and the file name is draft 7. I'm saving it. Already draft 7 file is there, so it's replacing the file. Just click on yes and it will save the file. You can check it from here. The draft 7 file is there, so it's saving in the PDF format. So this is the Zener characteristic. Now we are moving to the another software, which is KiCad. In the software, we will draw and simulate the same diode circuit. होप कि ये सभी लोगों का रिजल्ट्स आ गया होगा और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं जो भी. तो मैं LT स्पाइस को यहीं पर क्लोज कर देता हूं और अब हम सेम सर्किट को KiCad पर बना करके देखते हैं उसको कैसे वहां बनाना है और कैसे सिमुलेट करना है. मैंने KiCad सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, आप लोग भी ओपन कर लीजिए. सेम सर्किट को हम यहां पर सिमुलेट करके देखने वाले हैं. सारे मेन्यूज अवेलेबल हैं, फाइल, व्यूज, टूल्स, ब्राउज, प्रेफरेंस. पहले भी आप लोग इस पर सर्किट डिजाइन कर चुके हैं मॉर्निंग सेशन में. सो थोड़ा सा इजी होगा आपको करना. फाइल में जाकर के न्यू प्रोजेक्ट, मेरे में पहले से test2 प्रोजेक्ट है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूं. ये रिप्लेस करेगा. यस, test2 में स्कीमेटिक test2.sch स्कीमा ओपन करके देगा आपको. ये यहां आपको डिजाइन करनी है. KiCad सॉफ्टवेयर में सारे सिमुलेशन मॉडल पी स्पाइस के अवेलेबल नहीं है, तो आपको अगर सिमुलेशन करना है तो यहाँ पर हमें पी स्पाइस मॉडल ही सिलेक्ट करने होंगे. अदरवाइज यहाँ आप स्कीमेटिक डिजाइन कर सकते हैं, पर अगर आपको उसको सिमुलेट करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. उसके लिए आपको ओपन सोर्स कुछ साइट्स हैं, वहां पर उसकी लाइब्रेरीज होती हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो सिमुलेशन यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ सिंबल. तो यहाँ प्लेस सिंबल पर क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन प्लस मार्कर बन करके आएगा. इसको जो हमारी स्कीमेटिक विंडो है, ग्रिड विंडो, इस पर कहीं भी प्लेस कर दें. जैसे ही प्लेस करेंगे ये लाइब्रेरी अपलोड करता है फर्स्ट टाइम. तो यहां पर मैं डायरेक्टली स्पाइस सिलेक्ट कर देता हूं. आप भी स्पाइस से सर्च करिए. जैसे ही स्पाइस से सर्च करेंगे तो सारे जो भी स्पाइस के मॉडल हैं इसमें वो दिख जाएंगे आपको. यहां पर एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं. ओके, वोल्टेज सोर्स लेने के बाद में एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं स्पाइस मॉडल का. और इसको प्लेस कर देते हैं विंडोज पर, स्क्रीन पर. और यहां से एक और डायोड, स्पाइस मॉडल में डायोड भी अवेलेबल है, हम इसको डायोड ले लेते हैं, प्लेस कर देंगे और वायर से कनेक्शन कर देंगे.
वायर सेलेक्ट करना होगा। फिफ्थ ऑप्शन जो है ग्रीन कलर से प्लेस वायर का है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके, और यहां से ये कनेक्शन कर लीजिए। ग्राउंड आपको सारे सर्किट्स में देना है। तो यहाँ जैसे ही हम जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ग्राउंड प्लेस पावर पोर्ट, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ लेकर के आके क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि हमें कौन सा ग्राउंड लेना है। तो हमें पी स्पाइस मॉडल का ग्राउंड लेना है, तो पी स्पाइस पर क्लिक करेंगे और ये 0 वोल्ट रेफरेंस पोटेंशियल फॉर सिमुलेशन, इसको लेकर के और यहाँ प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। आप भी इसको देख करके कंप्लीट कर लीजिए सर्किट को। सभी लोगों का स्कीमेटिक जो है ये ड्रॉ हो गया होगा। हमें इसको सिमुलेट कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहले तो जो इसका फर्स्ट स्टेप है, ये हमें इसमें एनोट करना होता है, एनोटेशन देना होता है, क्योंकि कोई भी जो कंपोनेंट है हमने एल टी स्पाइस पर किया, वहां पर एनोटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। कीकैड में एनोटेशन नहीं आता है, तो आपको अगर वैल्यूज देना है तो you have to give using annotation tools, this annotation schematic tool. Just click on annotation schematic tools, and annotation schematic window will open here. Click on annotate. It will show the annotation complete, and the annotation for annotate 0 ground, annotate diode as a D1, annotate resistor as a R1, and V source as a V1. Just close it. So now we provide the value for R. To provide the value, just right click on the component and select the properties. Click on edit value. So here you have to provide the value. So I'm just providing 200 ohm as we provided in earlier circuit. Okay. And the diode, and we have to provide the values for voltage source. Just right click here, properties, and edit values.
12 volt. Okay, and then we have to run ERC, electrical rule check. Click on the ERC. You can click from here or you can select from inspect. Click on electrical rule check. If there is or any error, it will show you. Click on run. Pin connected to other pins but not driven. It's a warning only. Close. Go to tools and run simulator. Click on the run button. जी सर, आई थिंक वोल्टेज सोर्स का पिन 1 प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हुआ है। 2 वार्निंग्स नहीं आनी चाहिए थी, सिर्फ ग्राउंड की वार्निंग होनी चाहिए थी। Okay, sir. Just click on delete. अब इसे हमें रन करना है, सिमुलेट करना है। सिमुलेट करने के लिए आप सबसे पहले इसमें इंस्पेक्ट में जाकर के ERC चेक करेंगे, इलेक्ट्रिकल रूल्स चेकर। इसको चलाने हमने चला चुके हैं पहले से और उसने एक वार्निंग दी हुई है या 2 वार्निंग दी है ग्राउंड से रिलेटेड। अब यहाँ पर टूल्स में जाकर के सिमुलेटर पर क्लिक करेंगे इसको सिमुलेट करने के लिए। और यहाँ सिमुलेशन सेटिंग्स, अब हमें जैसे हमने वहां पर वोल्टेज में दिया हुआ था कि DC स्वीप, यहाँ पर DC स्वीप नहीं है, यहाँ पर सीधा DC एनालिसिस ही होगा इसका। इसके लिए हमें सिमुलेशन पैरामीटर्स देने होंगे। सिमुलेशन में जाकर के सेटिंग्स, और सेटिंग्स में जाकर के हमें यहाँ DC ट्रांसफर सेलेक्ट करना है। DC सोर्स में हमने जो वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है वो हमारा P स्पाइस मॉडल का है, तो इसको हम V1 सेलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग वोल्टेज मैं 0 वोल्ट देता हूं जैसे कि हमने वहां पर दिया था। फाइनल वोल्टेज में अभी यहाँ पर सपोज 1 वोल्ट देता हूं या उससे ज्यादा 1.5 वोल्ट देता हूं। और इंक्रीमेंट स्टेप जो है वो 0.01 मिलीवोल्ट जैसा कि हमने वहां पर दिया हुआ था। और इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद में यहाँ इसने एक एरर दी है, सर्किट कीकैड स्कीमेटिक एरर ऑन लाइन 4 D1 नेट D1 पैड 1 नेट D1 पैड 2 डायोड अनेबल टू फाइंड डेफिनेशन ऑफ मॉडल डायोड। जो हमारा डायोड है D1, ये P स्पाइस मॉडल में यहाँ पर अवेलेबल तो है पर इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर हमें, चूंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और सभी के लिए लाइब्रेरीज जो भी ओपन सोर्स पे काम करते हैं वो बना करके रखते हैं, तो अगर इसमें वो लाइब्रेरी नहीं है तो हम किसी एक पर्टिकुलर डायोड की लाइब्रेरी लेकर के उसको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर उसकी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, आप लोग भी एक बार सिमुलेट करके देखिए, सेम एरर आपके पास में भी आएगी। यहाँ पर एक बार चेक करके देख लीजिए और उसको कैसे सॉल्व आउट करना है वो फिर मैं आपको बताता हूँ।
पार्टिसिपेंट में से किसी ने ट्राई किया क्या? कुछ एरर आ रही है? हाँ सर, सेम सर सेम एरर आ रही है। सेम एरर आ रही है सर। तो जब भी इस टाइप की अगर एरर आ रही हो और हमारे पास में कंपोनेंट पी स्पाइस मॉडल अवेलेबल नहीं हो, तो हमें उसे कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो हमें इसको नेट सर्च में सर्च बार में सिलेक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली हम 1N4007 जो कि मैंने, यस सर। सर समय हो गया है, तो अपन कल के लिए कर लें सर इसको। हाँ सर, कल के सेशन में कर सकते हैं सर। जी 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 सर। हाँ सर, टाइम ओवर हो रहा है। तो सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि अटेंडेंस जरूर फिल कर दें अभी आफ्टरनून सेशन के दोनों जो सेशन हैं, और कल 10:30 पे फिर हम मिलेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। आप अभी अगर डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, और एल्स अगर आपको, आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कल हम फिर से ये सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, और एल्स अगर आपको ट्राई करके देखिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कल के सेशन में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। सर ये एक सा डाउट था। हाँ प्लीज पूछिए सर। सर जो भी हम कर रहे हैं इसको सेव करके रखना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली क्रॉस कर दें? सर ये बेटर होगा कि आप उसे सेव करके रखें, क्योंकि सेम सर्किट्स और डिजाइन्स जब आप दोबारा से ओपन करेंगे तो आपको रिवीजन के लिए इजी रहेगा। ओके सर, शायद सर का ये कहना हो सकता है कि जो फाइनल एग्जाम होंगे अपने, हाँ हाँ उसमें काम आने वाले हैं क्या ये? डेफिनेटली सर, आप पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो ये काम आ सकते हैं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो होंगे। ओके सर। डेफिनेटली सर, जितने भी क्वेश्चनर्स बनेंगे एग्जाम सेशन में, वो जितने भी हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं उसी से होंगे, क्योंकि थियरी के तो आप सभी लोग पहले से मास्टर हैं। प्रैक्टिकल में ये जो चीजें हैं शायद सभी लोगों के लिए पुरानी ना हो। सभी लोगों में से कुछ लोग होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे इस पे सेशन, तो ये चीजें जहां तक रिमाइंड हो सकेंगी बेटर होगा।